Good morning, dear friends. Welcome to you in today's video lecture. Dear friends, you know that our 12th syllabus is divided in 10 chapters. Out of them, first chapter known as Introduction to Micro and Macroeconomics, and second is Utility Analysis. These two chapters we have been completed. Now today we are going to discuss about third chapter, which is again divided in two parts, A and B. In A part, particularly we will discuss about demand analysis, and B part, which is known as elasticity of demand. So first we will discuss about A part of third chapter, called as demand analysis. So in this chapter we will learn concept of demand as well as individual demand, market demand, then determinants of demand, types of demand, law of demand with its assumptions and exceptions also, and then variation and changes in demand also discuss in demand analysis. Dear student, before explaining detailed demand analysis, we must know the concept of demand, and therefore today we are going to learn about very important topic which is called as concept of demand and its features. विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर का ए पार्ट, जिसे डिमांड एनालिसिस कहा जाता है, वह पार्ट आज देखने वाले हैं। ये चैप्टर में हम डिमांड की मीनिंग एज वेल एज इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, यह कंसेप्ट, साथ ही साथ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड और वेरिएशन एंड इंक्रीज decrease in demand as well as changes in demand. These are many concepts will be discussed in third A chapter, which is called as demand analysis. So before explaining whole demand analysis, we must know the concept of demand. तो ये पूरा डिमांड एनालिसिस एक्सप्लेन करने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिमांड की कंसेप्ट क्या है, उसके क्या फीचर्स है। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम डिमांड की कंसेप्ट देखने वाले हैं कि डिमांड की कंसेप्ट क्या है। तो इसलिए आज हम डिमांड कंसेप्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, यू नो दैट यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. वी हैव सीन द चैप्टर ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, एंड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव एक्सप्लेन दैट कि यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. एनी कमोडिटी which is demanded by consumer is related with utility derived by consumer from that particular commodity. If commodity has utility, then he will demand it. If commodity does not have utility, then he will not demand it. It means consumer's demand is depend on utility derived from that particular commodity, and therefore utility is the base of demand. जिस वस्तु में उपभोक्ता को यूटिलिटी मिलती है, वही वस्तु की डिमांड कंज्यूमर द्वारा की जाती है, अदरवाइज वह उसकी डिमांड नहीं करता। इसलिए डिमांड का बेस यूटिलिटी है. यूटिलिटी जनरेट डिजायर और नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी. इफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी हैज यूटिलिटी, देन दैट यूटिलिटी जनरेट डिजायर टू हैव दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड देयरफॉर इट इज द बेस ऑफ डिमांड. जनरली इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर. हम हमारे डेली रूटीन लैंग्वेज में डिमांड को ही डिजायर बोलते हैं, बट डिजायर और डिमांड ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है. डिजायर मीन्स टू हैव समथिंग. डिजायर मीन्स टू एन आर्ग्यू टू हैव समथिंग, कि हमें ये पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए, इस प्रकार की हमारी इच्छा, जिसे हम डिजायर कहते हैं. बट ऑल डिजायर ऑफ कंज्यूमर डज नॉट बिकम हिज डिमांड, क्योंकि डिमांड इज वाइडर देन द कंसेप्ट ऑफ
यानी कि डिमांड और डिजायर ये दोनों भी एक दूसरों से अलग कंसेप्ट है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम डिजायर को ही डिमांड कहते हैं, और डिजायर जो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी मुझे चाहिए, इस प्रकार की उपभोक्ता की इच्छा, जिसे हम डिजायर कहते हैं। टू हैव समथिंग इज कॉल्ड एज डिजायर, बट डिमांड इज नॉट डिजायर। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज मोर देन डिजायर, इट हैज पर्टिकुलर मीनिंग। डिमांड मीन्स डिजायर which is backed by willingness to pay and ability to pay. It means demand is desire, but it should have back of willingness to pay and ability to pay also. Here we may take very easy example कि beggars desire to have a car does not become his demand. Beggars desire to have a car does not become his demand because he has not ability to pay for it. बेगर्स को भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए, लेकिन उसके पास कार परचेस करने की एबिलिटी या कार परचेस करने के लिए आवश्यक परचेसिंग पावर उसके पास नहीं है, एंड देयरफॉर his desire to have car does not become his demand. It means there are some condition which is required to demand. First one is desire. It means we must have desire to have particular commodity, as well as we must have ability to pay. तो हमारे पास वो पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। डिजायर है, कार चाहिए, डिजायर है, लेकिन कार परचेस करने के लिए आवश्यक एबिलिटी या परचेसिंग पावर होना भी जरूरी है। अदरवाइज आवर डिजायर डज नॉट बिकम आवर डिमांड, एंड देयरफॉर एबिलिटी टू पे इज आल्सो नेसेसरी इन द कंसेप्ट ऑफ demand. Not only ability to pay, but we must have willingness to purchase, willingness to spend. It means ability to pay as well as willingness to spend is also necessary for demand. Stingly person having desire, he has ability to pay, but he does not willing to spend on particular commodity. वो कार के ऊपर खर्च करना नहीं चाहता, तो उस प्रकार के कंजूस व्यक्ति की डिजायर भी उसकी डिमांड नहीं बन सकती। इट मीन्स देयर इज 3 कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिमांड। हियर वी विल टेक वेरी इजी एग्जांपल। 100% हैज डिजायर टू हैव अ कार व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट इज 5 लाख इन 2020। 2020 में 100% ऐसे है कि हु हैज डिजायर टू हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए, इस प्रकार की इच्छा रखने वाले 100% हैं। एंड व्हेन प्राइस ऑफ कार इज पर यूनिट 5 लाख, सो इट मीन्स वी कैन नॉट कंक्लूड दैट देयर इज 100 यूनिट्स ऑफ कार इज डिमांडेड। नो, बिकॉज इफ वी हैव ओनली डिजायर बट वी डू नॉट हैव एबिलिटी टू पे, तो उस समय हमारी डिजायर हमारी डिमांड नहीं बन सकती। डिजायर है 100 लोगों के पास कि मेरे पास कार होनी चाहिए। 100 लोगों की ऐसी डिजायर है कि जब कार की कीमत 5 लाख है तो उस समय मेरे पास कार होनी चाहिए। इस प्रकार की डिजायर रखने वाले 100 पीपल्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार के लिए 100 यूनिट्स की डिमांड है, क्योंकि डिजायर है बट डिमांड के लिए सेकेंड कंडीशन हमने देखे कि एबिलिटी टू पे भी नेसेसरी है। एंड देयरफॉर हियर 50% हैज डिजायर एज वेल एज एबिलिटी टू पे टू हैव अ कार व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट इज 5 लाख इन 2020। ये 100 में से ओनली 50% ऐसे है कि हु हैज डिजायर एज वेल एज एबिलिटी टू पे ऑल्सो, जिनके पास डिजायर भी है और एबिलिटी टू पे भी है, यानी कि परचेसिंग पावर भी है और कार परचेस करने की डिजायर भी है, जबकि कार की कीमत 5 लाख पर यूनिट है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि 2020 में कार की कीमत 5 लाख पर यूनिट होने पर 50 यूनिट्स ऑफ कार इज डिमांडेड। नो, बिकॉज हियर दे हैव डिजायर, दे हैव एबिलिटी टू पे, बट आउट ऑफ देम सम विल बी स्टिंगली पर्सन। कुछ कंजूस भी उसमें हो सकते हैं जो कि डिजायर रखते हैं
एबिलिटी टू पे भी है उनके पास है, लेकिन कार के लिए खर्च करना नहीं चाहते। तो इसलिए पूरे 50 यूनिट ऑफ कार की डिमांड है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कार की डिमांड होने के लिए और एक कंडीशन जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज विलिंगनेस टू परचेस, विच इज कॉल्ड एज विलिंगनेस टू स्पेंड। तो आउट ऑफ 50 ओनली 25 पीपल्स हैज डिजायर, एबिलिटी टू पे as well as willingness to purchase also. So here when price of car is 5 lakh per unit in 2020, so here we can say that there is only 55 units of car is demanded when price of car is per unit 5 lakh in 2020. So here 25% who has fulfilled all three conditions of demand, डिमांड की तीनों भी कंडीशन जिन्होंने फुलफिल की है, वैसे सिर्फ 25% है। इट मीन दे हैव डिजायर एज वेल एज दे हैव एबिलिटी टू पे एंड एज वेल एज दे हैव थर्ड कंडीशन विलिंगनेस टू स्पेंड आल्सो। सो वी कैन से दैट 55 यूनिट्स ऑफ कार इज डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट इज 5 लाख इन 2020. सो डिमांड मीन्स द डिजायर backed by ability to pay and willingness to spend. So here we can formulate the formula of demand also. Demand is equal to desire plus ability to pay plus willingness to purchase. When all three condition is fulfilled, then our desire will become our demand. जब ये डिमांड की तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारी डिजायर, हमारी डिमांड बन सकती है. सो ऑल डिजायर डज नॉट कंसिडर एज ए डिमांड. सो डिमांड मीन्स ओनली दोज डिजायर विच हैज एबिलिटी टू पे एंड विच हैज विलिंगनेस टू स्पेंड. यानी कि ऐसी डिजायर जिसे एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू स्पेंड का भी जिसके साथ सहयोग है, ऐसी ही डिजायर हमारी डिमांड बन सकती है. सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर. व्हाट? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर. इट मीन्स ओनली दोज डिजायर विल बी our demand which has ability to pay as well as which is backed by willingness to spend. Like here we have seen 25 cars is demanded there because 25% has desire to have car as well as they have ability to pay as well as they have willingness to spend on car, and therefore only 25 cars की desire effective है. So only 25 units of car is demanded there. So demand is an effective desire. Effective desire means which has backed by ability to pay and willingness to spend. So all 100% have desire to have car, but all persons desire does not become their demand. लेकिन सभी 100% की डिजायर उनकी डिमांड बनी है क्या? नहीं, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन of demand is not fulfilled by them, and therefore all desire does not become our demand. So only those desire it become our demand which has ability backed by ability to pay and willingness to spend. So all desire are not demand. So according to Benham, the demand for anything at given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. So Benham is the economist who has defined the concept of demand. So according to him, demand for anything, यानी कि किसी भी वस्तु की डिमांड वह है at given price, दी हुई कीमत पर, is the amount of it, यानी कि उसकी अमाउंट, यानी कि यहाँ पर उसका मतलब लेना है quantities of it which will be bought per unit of time at that price. वही कीमत पर कितनी मात्रा की परचेस की है, वही परचेस की हुई मात्रा उसकी डिमांड होती है. सो डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, दी हुई कीमत पर, इज द अमाउंट ऑफ इट, यानी कि उस वस्तु की वही क्वांटिटी विच विल बी बॉट, जो कि उसने परचेस की है पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस.
तो वही कीमत पर कितने मात्रा उसने परचेस की है उसे ही हम उसकी डिमांड कहते हैं। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या? डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ पर्सन इज रेडी टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज द डिमांड? डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी वस्तु की वही क्वांटिटी विच पर्सन इज रेडी टू बाय, कि जिनके लिए पर्सन वह कार हो या किसी भी कमोडिटी हो उनको परचेस करने के लिए रेडी है, एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उस वस्तु की दी हुई कीमत पर जितनी मात्रा वह परचेस करना चाहता है या परचेस करता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम डिमांड कहते हैं। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर समय अवधि में दी हुई कीमत पर कंज्यूमर कितनी मात्रा यानी कि कितनी यूनिट्स परचेस करता है, वही क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज परचेज बाय द कंज्यूमर एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिमांड। सो डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि वस्तु की वही क्वांटिटी विच पर्सन इज रेडी टू बाय at particular price during a specific period of time. Dear friends, we have to understood that whenever we will discuss about demand, there should be reference of price and time also. So then next, which is very important for us, is features of demand. Demand की features भी हमें देखना है। First one is demand is relative concept. Concept of demand is relative concept. It is relative in nature. Concept of demand is relative in nature. Generally, it is related with time and place. Concept of demand is relative in nature and it is related with time and place. It means demand can be changes with time as well as place. It can be changed with time as well as place. Here we will take very easy example. Woolen clothes का एग्जाम्पल हम यहां पर ले सकते हैं कि विच हैज मोर डिमांड इन कश्मीर देन प्लेस से रिलेटेड ये एग्जाम्पल हुआ। टाइम से रिलेटेड भी हम ले सकते हैं कि अम्ब्रेला हैज मोर डिमांड ड्यूरिंग रेनी सीजन देन विंटर सीजन। सो इट इज रिलेटेड विथ टाइम एंड प्लेस, यानी कि डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड जनरली डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। जब भी हम डिमांड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उस समय हमें टाइम और प्राइस का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ टाइम एंड प्लेस। सो डिमांड इज essentially expressed with reference to time and price. Whenever we will discuss about the concept of demand, we must have reference of time and price also. So we have seen the example कि 25 units of car is demanded when its price is 5 lakhs in 2020. In this our sentence we have taken the reference of time when that car is demanded. We have taken years in 2020. year हो, month हो, week हो या day हो, whatever it may be time, it should be mentioned in the sentence of related to the demand. डिमांड का सेंटेंस जब भी हम डिमांड से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय डिमांड कब की है उस टाइम का रेफरेंस हमें देना चाहिए। एज वेल एज व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड we must have reference of price. So what is the price of that particular commodity? Price may be small or it may be price कम हो या ज़्यादा हो, but there should be reference of price of that particular commodity.
because demand is related with price also. So demand is essentially expressed with reference to time and price. So we have taken price in our sentence like 5 lakhs per unit of car. तो इस प्रकार जब भी हम डिमांड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमें टाइम का और प्राइस का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है. सो देर आर टू फीचर्स ऑफ डिमांड. फर्स्ट वन, it is relative concept, generally it is related with time and place, and second is demand is essentially expressed with reference to time and price. So dear friends, we have seen today the concept of demand, formula of demand, and then features of demand also. तो मित्रों, आज हमने डिमांड की कंसेप्ट, डिमांड का फार्मूला एज वेल एज डिमांड के फीचर्स देखे हैं. तो you know that demand is the quantity of commodity which a person is ready to buy at particular price during a specific period of time. ये हमने डिमांड की डेफिनेशन भी देखे हैं. साथ ही साथ हमने ये भी एक्सप्लेन किया है कि ऑल डिजायर डज नॉट बिकम कंज्यूमर्स डिमांड, ओनली दोज डिजायर विल बिकम हिज डिमांड विच हैज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू spend. So all desire does not become our demand, and as well as we have seen the two main important features of the demand, that is demand is relative concept and another is demand is always related with time and price, as well as there should be reference of time and place. तो इस प्रकार आज हमने डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड का फार्मूला और डिमांड की फीचर्स भी देखे हैं. आपको डिमांड का फार्मूला भी ध्यान में रखना है कि डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड. इस प्रकार मित्रों आज हमने डिमांड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड, साथ ही साथ डिमांड का फार्मूला और डिमांड के फीचर्स भी देखे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आज हमने देखा है आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा. इस प्रकार की एक आशा रखते हुए वी विल स्टॉप हियर, वी विल ओवर आवर लेक्चर. थैंक यू सो मच.